اور ضمنی انتخابات سے متعلق آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ ملتان سے تازہ اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی دھاندلی کا الزام لگا کر فیکٹری میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ مناظر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی دھاندلی کا الزام لگا کر فیکٹری میں داخل ہونے کی کوشش۔ ملک شہادت حسین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بتائیے گا تفصیل، کیا الزام لگایا شاہ محمود قریشی نے؟ کیا کہتے، کیوں ہو رہی تھی دھاندلی، کیسے ہو رہی تھی دھاندلی؟ یہ ایک نجی فیکٹری ہے، بسکٹ فیکٹری ہے۔ یہاں پر جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں مزدور جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں، جو اس حلقے کے ووٹر بھی ہیں۔ تو شاہ محمود نے یہ الزام لگایا کہ اس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ سٹیمپ لگائی جا رہی ہے ووٹرز کے اوپر۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دروازے اس کے بجانے شروع کر دیے اور زبردستی کھلوانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کے اندر کوئی پولنگ اسٹیشن نہیں ہے دور دور تک۔ تو لیکن یہ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں، زبردستی انہوں نے گیٹ بجائے ہیں اور گیٹ بجا کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن ملازمین جو تھے وہاں پر وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پولنگ اسٹیشن ہے، نہ کچھ ہے، نہ اندر ملازمین ہے، سارے جس طرح روٹین میں جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ کام۔ شہادت یہ بتائیے گا، اندر داخل ہوئے شاہ محمود قریشی، دورہ کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں، اندر انہوں نے نہیں جانے دیا۔ ملازمین جو ہیں وہ باہر آ گئے تھے، انہوں نے باہر آ کے نعرے بازی وغیرہ کی ہے، تو شاہ محمود وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اچھا شہادت، یہ بھی بتائیے گا کہ فیکٹری کس چیز کی ہے، فیکٹری کا مالک کون ہے، فیکٹری کے مالک کا کوئی موقف سامنے آیا ہے اس متعلق؟ جی، فیکٹری کے مالک ہیں چودھری ذوالفقار انجم، جو کہ معروف صنعتکار ہیں ملتان کے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ روز قبل شاہ محمود نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کیا، وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے اگلے ہی دن یوسف رضا گیلانی کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے شمولیت کی تھی اور ان کے امیدوار کا ساتھ دینے کا بھی اعلان کیا تھا۔ تو شاہ محمود اسی رنجش میں یہاں پر آئے اور فیکٹری کے اندر گھسنے کی کوشش کی کہ یہاں پر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، یہ جا کر ان کو رنگے ہاتھ میں پکڑیں، لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا، ملازمین بھی نہیں تھے، جو ملازمین تھے وہ باہر سے آئے۔ ملک شہادت حسین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ شاہ محمود نے گفتگو بھی کی میڈیا سے، وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ پولنگ اسٹیشن ہے، ووٹ مقاصد ہو رہے ہیں، پولنگ اسٹیشن تو نہیں نا ادھر۔ آئے آرو صاحب آئے اور دیکھیں یہاں تھپے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے۔ آج اگر آزاد میڈیا ہے تو رپورٹ کرے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، رکشے دکھا دیے، پرائیویٹ سیکٹر دکھا دیے اور سرکار ابھی یہاں سے بھاگ کے گیا ہے۔ ابھی یہاں آیا تھا، ابھی آپ کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں یہاں سے پڑھا، ابھی بھاگ کے گیا ہے یہاں سے۔ جی بالکل۔ ملتان کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، ایک فیکٹری کا دروازہ کھٹکھٹایا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے اور یہ الزام لگایا کہ ان کے مطابق یہاں پر ٹھپے لگ رہے تھے بیلٹ پیپرز پر، یہاں پر دھاندلی ہو رہی تھی۔ ایک یہ بسکٹ کی فیکٹری بتائی جاتی ہے ملتان میں، جہاں پر شاہ محمود قریشی کو یہ شک ہوا کہ اندر بیٹھ کے ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ ملک شہادت حسین ہمارے نمائندے یہاں پر موجود ہے۔ شہادت، یہ بتائیے گا، یہ شبہ، یہ شک ہوا کیسے شاہ محمود قریشی کو؟ یہ شک اسی وجہ سے ہوا کیونکہ چند روز قبل انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار کی سپورٹ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے امیدوار کی سپورٹ انہوں نے کی، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی سپورٹ جو کی، کیونکہ یہاں پر تقریباً 5-6 ہزار اس سے بھی زیادہ فیکٹری ملازمین ہیں جو کہ اسی علاقے کے رہائشی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فیکٹر تھا یہاں پہ کہ وہ تمام کے تمام نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا وعدہ کر لیا۔ فیکٹری مالک چودھری ذوالفقار نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے فیکٹری پر دھاوا بولا ہے۔ ایک بار پھر ملک شہادت آگاہ کیجیے گا، فیکٹری کے مالک کا اس تمام تر معاملے پر کیا موقف سامنے آیا ہے جب یہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے فیکٹری کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اور فیکٹری ملازمین مالک ہیں، جی ملک آپ بتائیے۔ فیکٹری کے مالک ہیں چودھری ذوالفقار، انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود نے زبردستی اندر آنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی گیٹ بند کر دیے گئے، حالانکہ جتنے بھی ملازمین ہیں وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چند روز ان کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے میں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی سپورٹ کا اعلان کیا، تو یہ اسی رنجش میں میری فیکٹری پر دھاوا بولنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ہی ووٹ دیں گے، یہ چودھری ذوالفقار انجم کا کہنا ہے۔ تو شاہ محمود جو ہے اسی رنجش میں یہاں پر آئے کہ یہاں پر انہوں نے فیکٹری کے اندر کچھ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، عملے کو بٹھایا ہوا ہے، تو یہاں پر وہ ٹھپے لگا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں نے ان کو بلایا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ
यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे उन्होंने धावा बोला है। ठीक है मलिक शहादत, इस दौरान अली मूसा गिलानी का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो भी अपने नाज़रीन को बताते चलें। अली मूसा गिलानी ने कहा है कि ये उनके सपोर्टर की फैक्ट्री है और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि फैक्ट्री मालिक चौधरी जुल्फ़िकार का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने फैक्ट्री पर धावा बोला। फैक्ट्री में ना कोई पोलिंग स्टेशन है और ना ही कोई धांधली हो रही है, ये फैक्ट्री मुलाजमीन का मौक़िफ़ सामने आया। अली मूसा गिलानी ने कहा कि शाह महमूद हमारे सपोर्टर की फैक्ट्री पर आए और उन्हें हिरासा किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने धांधली का इल्जाम लगाकर फैक्ट्री में दाखिल होने की सूरत हाल से मुतालिक आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। यहाँ पर बताया जा रहा है शाह महमूद कुरैशी पहुंचे और मुसल्ला गार्ड्स के साथ पहुंचे, दरवाज़ा फैक्ट्री का खटखटाने शुरू हो गए और ये शुबा जाहिर किया, शक जाहिर किया, इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर अंदर ठप्पे लग रहे हैं बैलेट पेपर्स के ऊपर, अंदर उनको जाने दिया जाए। यहाँ पर जो फैक्ट्री मुलाजिमीन थे वो ये दावा करते हैं, मौक़िफ़ लिए हुए हैं कि फैक्ट्री में कोई नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर मुसर थे कि फैक्ट्री के अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि शाह महमूद कुरैशी ने अंदर जाने की कोशिश की और उनके साथ गार्ड्स भी, मुसल्ला गार्ड्स भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे मलिक शहादत हुसैन हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 2-4 रोज़ पहले भी शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ पर इसी शुबे का इजहार किया था कि उनके जो नून लीग के मुखालिफ हैं या हरीफ हैं वो यहाँ से कोई धांधली की जो काविशें हैं वो इंगेज कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में ये बिस्किट की फैक्ट्री बताई जाती है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले PTI के शाह महमूद कुरैशी पहुँचे, फैक्ट्री का गेट उन्होंने खटखटाने शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के साथ यहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद थे, उनके ज़ाती मुसल्ला गार्ड। अच्छा शहादत हुसैन, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं और फैक्ट्री के अतराफ और फैक्ट्री के अंदर क्या सिचुएशन है? जैसे उन्होंने गेट बजाने शुरू किए और अंदर जाने की कोशिश की, धावा बोला, तो फैक्ट्री के जो मुलाजमीन थे उनको पता चला, तो वो जो लोग वोट कास्ट करने के लिए गए हुए थे वो वापस उन्होंने फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री के बाहर आना शुरू हो गए कि उनकी फैक्ट्री के ऊपर कोई धावा बोला गया है, कोई हमला किया गया है। तो जैसे ही फैक्ट्री के मुलाजमीन वहाँ पे जमा हुए तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे ही नारेबाजी शुरू की उन्होंने, तो उसके बाद शाह महमूद जो है जिस गाड़ियों पे आए थे उन्हीं गाड़ियों के ऊपर वापस रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही वायरलेस वगैरह चली तो रेंजर्स की और पुलिस की भारी नफरी जो है वो निजी फैक्ट्री के बाहर वहाँ पर पहुँच गई और शाह महमूद वहाँ से निकल गए। शाह महमूद कुरैशी की धांधली का इल्ज़ाम लगाकर फैक्ट्री में दाखिल होने की कोशिश। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फैक्ट्री के अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया शाह महमूद कुरैशी ने, जबकि ये भी कहा कि RO यहाँ आए और फैक्ट्री के अंदर जो ठप्पे लगाए जा रहे हैं उसका नोटिस ले। फैक्ट्री का मालिक चौधरी जुल्फ़िकार भाग गया, ये भी कहा शाह महमूद कुरैशी ने, जबकि फैक्ट्री मालिक चौधरी जुल्फ़िकार का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो भी आपको बताया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने फैक्ट्री पर धावा बोला। फैक्ट्री मुलाजमीन ने बताया कि फैक्ट्री में ना कोई पोलिंग स्टेशन है और ना ही कोई धांधली हो रही है। अली मूसा गिलानी ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी हमारे सपोर्टर की फैक्ट्री पर आए और उन्हें हिरासा किया। शाह महमूद कुरैशी ने तासुर देने की कोशिश की कि फैक्ट्री में ठप्पे लग रहे हैं। मलिक शहादत हुसैन हमारे नुमाइंदे हमें इस तमाम तरवाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट कर रहे हैं। मलिक ये बताइएगा, जब शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर आए उनके साथ कौन कौन मौजूद था? कारकुरान की हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मौजूद थे, ज़रा आगाह कीजिएगा हमें उस वक्त के मनाजिर से। जी बिल्कुल, जब वो वहाँ पर आए तो काफ़ी सारी उनके साथ गाड़ियाँ थी, कारकुनान थे, जो इनके ज़िले सदर हैं वो भी थे, जो इसके ठीक है मलिक शहादत, आप साथ ही रहिएगा। अली मूसा गिलानी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। अली मूसा गिलानी साहब, तमाम तर मामला आपके सामने, इस तमाम तर मामले पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो वहाँ से जा चुके थे और मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि वो इतने बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि वो पहले से एक मीडिया की टीम को साथ लेके दिखाना चाह रहे हैं कि जी धांधली हो रही है। 3 किलोमीटर दूर पोलिंग उनकी चौधरी जुल्फ़िकार साहब की एक फैक्ट्री है, उनकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो उनके दरवाजे तोड़ रहे और कह रहे हैं कि अंदर धांधली हो रही है। अंदर कैसे धांधली हो सकती है? स्टैंप के अंदर कैसे लग सकती है? वो पोलिंग के बाहर धांधली हो या पोलिंग के अंदर धांधली हो तो वो दिखाएं। तो ये बौखलाहट का निशानी है और ये बहुत एक गैर मुनासिब हरकत की है उन्होंने और उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने का बिल्कुल हक रखते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन चौधरी जुल्फ़िकार साहब की तरफ से शाह महमूद के खिलाफ जा चुकी है कि वो मुझे हरास कर रहे हैं, मेरी फैक्ट्री के जो मैनेजर्स हैं, मेरे वर्कर्स हैं, उन सबको वो बाहर जाके हरास कर रहे हैं शाह महमूद साहब। तो ये हरकत है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। किसी पर मैं तमाम पोलिंगों पर फिर रहा हूँ, किसी पोलिंग पर
कोई मसला नहीं होगा, पुरसुकून तरीके से कास्टिंग हो रही है, कैंप्स भरे हुए हैं, टर्न आउट ठीक हो रहा है, तो इनको कोई बहाना नहीं मिलेगा। ये बहाना तलाश करना चाह रहे हैं कि शाम को बैठ के ये रोएं किसी तरीके से। अच्छा, इनको हम बहाना अली ये बताइएगा आप अंदर, क्योंकि शुबा जाहिर किया है, शक जाहिर किया और बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, तो आप फैक्ट्री का जायजा करवाने को तैयार हैं आप लोग? मैंने वहाँ पर मीडिया से बात की है, मैंने कहा कि आप अंदर जाके देखें क्या हो रहा है। अंदर उनकी फैक्ट्री चल रही है, अंदर उनका काम चल रहा है। सही। अच्छा अली मूसा गिलानी साहब, अचानक से ऐसा क्या हुआ? अब जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो करीबी पोलिंग स्टेशन हैं, तो फिर शाह महमूद कुरैशी ने इसी फैक्ट्री का रुख क्यों किया है? जो उस फैक्ट्री के नजदीक पोलिंग है, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर है वो उस पोलिंग के है ही नहीं, वो उस पोलिंग के भी नहीं है। और वहाँ पर पीटीआई का कैंप भी में भी वोट कास्ट हो रहा है, लोग पर्चे कटवा रहे हैं, और मुस्लिम लीग के कैंप में भी पर्चे कटवा रहे हैं लोग, बल्कि वहाँ पर जमात इस्लामी का कैंप है, वहाँ पर भी पर्चे शाह महमूद कुरैशी यहीं पर क्यों आए, इसी फैक्ट्री को टारगेट क्यों किया है? मेरे साथ ज्यादती हो जाए हमारे साथ, शाम को रिजल्ट में जब ये अपनी हार देखेंगे तो इनको बहाना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ही जस्ट वांट्स एन एक्सक्यूज टू गिव टू द मीडिया। अच्छा ये बताइएगा, जो फैक्ट्री में इस वक्त आपकी ये नॉलेज में है कि कितने वर्कर्स मौजूद हैं और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं या वैसे रह रहे हैं? आज छुट्टी का दिन था, क्या है? देखिए वहाँ पर जो उनकी लेबर है वो वहाँ पर काम कर रही है। अच्छा, उनकी फैक्ट्री चल रही थी आज। अच्छा, क्योंकि शाह महमूद साहब कह रहे हैं, फ्राइडे वाले दिन छुट्टी शाह महमूद साहब कह रहे हैं कि अंदर ठप्पे लगवाए जा रहे हैं। ठप्पे कैसे लगाए जा सकते हैं? बैलेट उनको फैक्ट्री में मिला हुआ है, बैलेट उनको, मुझे ये बताएं बैलेट कहाँ पर है? बैलेट तो पोलिंग स्टेशन में है। हाँ। बैलेट तो सुबह उनके जो सामान आता है, सामान दोनों पोलिंग एजेंट के सामने खोला जाता है। सही। अच्छा अली मूसा गिलानी साहब, आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बता सकें तो फिर शाह महमूद कुरैशी ने इसी फैक्ट्री को टारगेट क्यों किया है? आपको क्या वजह लगती है? मैं आपको बताता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब कल एक और फैक्ट्री है, उनको उनके मालिकान को अपने साथ शामिल कराकर उन्होंने ये बताया है कि ये उनकी लेबर के जो वोट होंगे वो मुझे कास्ट होते हैं। उनको ये शक है कि जो चौधरी जुल्फकार साहब की फैक्ट्री है, ये लेबर को कहेंगे कि जी आप मुस्लिम लीग को वोट कास्ट करें, वो उनकी मर्जी। वो कहे लोगों ने अंदर तो अकेले ही जाके वोट कास्ट करना है ना, बूथ के अंदर तो वो अकेला होगा ना, कैमरा होगा ना, फोन होगा ना, कुछ होगा। आजादी राय है, और ये चौधरी जुल्फकार को सिर्फ प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। चौधरी जुल्फकार अंजुम साहब जो है वो जो सलमान नई कैंडिडेट है वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। पिछली दफा चौधरी जुल्फकार साहब जनरल इलेक्शन में इनके साथ थे, उन्होंने एक प्रेस रिलीज की कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरे साथ जो जुल्म किए हैं, मेरे साथ जो ज्यादतियां की हैं, मैं शाह महमूद के साथ नहीं चल सकता। ये आज से 3 महीने पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शाह महमूद उनको प्रेशर डालना चाह रहे हैं उनके ऊपर, तो दिस इज नो वे। वो 14 अरब रुपए का टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान के लिए। आप इस तरह करके इंडस्ट्रियलिस्ट को, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को हरासा करेगी पीटीआई, तो ये पीटीआई के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया। अली मूसा गिलानी हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कहते हैं कि ये हरासा करने की कोशिश की जा रही है फैक्ट्री वर्कर को, क्योंकि अब वो पीटीआई के मुखालिफ उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी के पास सबूत है तो फराहम करें, गलत खबरें मीडिया पर ना चलवाएं, किसी फैक्ट्री वर्कर का शनाख्ती कार्ड नहीं लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है, ये भी कहा कि गलत खबर चलवाना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले अली मूसा गिलानी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और कह रहे थे कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, निजी जगह पर आकर दरवाजे तोड़े गए, ये लोगों को हिरासा कर रहे हैं, ये हारेंगे तो ये वीडियो चलाएंगे। निजी फैक्ट्री पर रिटर्निंग ऑफिसर और रेंजर्स एहलकार पहुंच गए हैं, जबकि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि आरओ यहां आए और फैक्ट्री के अंदर जो ठप्पे लगाए जा रहे हैं उसका नोटिस ले। अभी रिटर्निंग ऑफिसर का ताज़ा बयान, कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी के पास सबूत है तो फराहम करें, गलत खबरें मीडिया पर ना चलवाएं, किसी फैक्ट्री वर्कर का शनाख्ती कार्ड नहीं लिया गया, गलत खबर चलवाना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है।